Hello everyone. Today we will create vendor invoices, which is very important document. We can create vendor invoices in material management and in financial accounting. It depends on policies and strategy of organization. So first of all, follow these steps. I taught everyone that kindly complete your assignment and present me one by one. But only two or three participants just presented me their assignment, and rest of all still on waiting. So, if you want to become professional qualified consultant in SAP, just concentrate on your assignment. This is extremely important for you. Otherwise, if you don't concentrate on your assignment, you will not get a lot of practical knowledge in SAP. Okay, do struggle in SAP so that you can compete in organization with other competitors like Indian and others on. In previous lecture, we have created goods not receive inventory, and then we will create purchase invoice. Purchase invoice we can create in and in FI. How to create purchase invoice in Come to logistics, then material management, then in logistics invoice verification. डॉक्यूमेंट एंट्री अच्छा एक बात आप इसमें नोट कीजिए कि इन तमाम में आपने जस्ट डॉक्यूमेंट एंट्री को फोकस करना है परचेज में भी आप देखें आपने जस्ट डॉक्यूमेंट एंट्री को फोकस करना है और इन्वेंट्री में भी आपने डॉक्यूमेंट एंट्री को फोकस करना है बाकी जितने भी इसके ऑप्शन है वो आपकी एंट्री जो आपके डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने एंट्री पोस्ट की उस पर बेस करते हैं तो इसमें भी आपने इनवॉइस के ऊपर फोकस करना है एंटर इनवॉइस अब इनवॉइस से पहले आप ये देखें CP01 इनवाइस से पहले आपने ये देखना है कि हाउ मेनी वेंडर्स यू हैव क्रिएटेड नंबर वन एंड हाउ मेनी परचेज ऑर्डर्स how many purchase orders you have placed to vendors and then how many good receipt notes you have created and then you will focus on invoices okay अब किस वेंडर को कौन सी और कितनी अमाउंट के ऊपर आपने इनवॉइस को कैलकुलेट करना है ये चीज मैटर करती है सो ME12 change data POCD then PEST PLC then execute. We just created only one purchase order and that is for 00000 so on one और ये आपका सप्लाई नंबर है और ये आपका मटेरियल कोड ये आपकी इनवॉइस अमाउंट है 1.010 मिलियन ST to be delivered 0 mean के we have received all inventory then come to MB51 MB51 this is material document list plant execute जितने भी आपके गुड सीट नोट हैं ये उसकी लिस्ट डिस्प्ले है और इसमें आप इसको ओपन करें डबल क्लिक कर दें यहाँ पे तो जो आपका गुड सीट नोट का डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करें फिनिश अकाउंटिंग में तो इस गुड सीट नोट की जो जर्नल एंट्री जो कि ऑटोमेटिक पोस्टेड हुई है उसका डिस्प्ले आ जाएगा तो आपने जो इनवॉइस पोस्ट करनी है आपने इस अमाउंट की बेस पे पोस्ट करनी है गुड रिसीट नोट की बेस पे पोस्ट करनी है देखिए एक तो आपने परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया वेंडर को अब वेंडर ने आपको इन्वेंट्री कितनी फॉरवर्ड की आपने कितनी इन्वेंट्री रिसीव की हमेशा उस रिसीव इन्वेंट्री के बेस पे इनवॉइस क्रिएट की जाती है सो यहाँ पे आप लिख दें परचेज ऑर्डर
परचेज ऑर्डर नंबर, यहाँ से आप देखेंगे परचेज ऑर्डर नंबर 4200000001। 4200000001, जहाँ पे आप 10 लिख दो। अच्छा, उसके बाद आप एंटर कर दो डेट 05/10/2020। अच्छा, रेफरेंस में एक और चीज़ है कि कंपनी को CPs 1 द रेंज 23 इज मिसिंग फॉर द ईयर 2020। तो इसको आप जो है न्यू सेशन में ओपन करें। Okay, we have to solve the error. The company code CP01, the number range 23 is missing for the year 2024. How to solve this error? So come to new session and then give FPN1. FPN1. First of all, you have to understand what is the meaning of this error. This error means that we are creating a vendor invoice. So system shows that document number range of vendor invoices is missing from back end. Okay, give a company code CB01. Then click on this interval and then click on this plus line. Number range, which number range we have to put? System guides you in company code number range 23. So here put 23, year 2024. Document number range you can see 6501, because this is last limit and we can cut it from 6501 to 6999. Enter save. One thing you keep in mind that one thing you must keep one thing you must note down that when you create vendor invoice, system shows this number mean uh, 6501 will be document number of your vendor invoice. Okay, sorry, enter and save. Enter again. It was saved. Now come to this, enter this. Okay, for locally. Okay, reference previous error has solved. Now you can see reference 1234 double one, sorry, 10011. This is reference, and so we have solved error, and you can continue invoice parting. Okay, invoice party. 160025. 160025. Enter. Now another error. Vendor 160025 is not defined in company code. We have to solve this error. Error is vendor 160025 is not defined. What this mean? What does it mean? Listen, we have created vendor in MM.
Why? This error means that we have not created a vent in finance department. So come to a new session slash n. Okay, come to accounting. Finish accounting, then accounts payable, masters record, create. In as for 2022, this TCO is not effective, so we can use BP instead of FK01. Okay, start. No, so this is this. Start your business. आपको जो भी वेंडर है 160025 160025 start business partner. Sorry, this is not your business partner. This is your supplier code. We have to find we have to put business code instead of supply. So how we can get this BP code? Okay, we have to get BP code while we just have only supplier number. So come to vendor display. Just give your purchase organization code POCP. Then click on execute. List of suppliers will be displayed, and you can get this is your supplier, not not BP. So you click on this. This is your VP number, business partner number. Okay, 670051. Come to VP 6700. Then start. Okay, double click on this display. Click on this, create this. ओके, ये ज़रा गलत हो गया एक्चुअली। जो आपने एमएम में जो क्रिएट किया है ना उसका 670051 उसको यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपने सप्लायर फाइनेंस उसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम जो आपने एमएम में क्रिएट किया था वो था सप्लायर। देखिए वेंडर दो उसमें क्रिएट होंगे, एक आपका एमएम में, एक आपका होगा फाइनेंस में। फाइनेंस में बेसिकली अपडेट होते हैं, वही कोड चलता है जो आपने एमएम में क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि ये कोड था आपका 670051, ये आपने क्रिएट किया था उसमें एमएम में। तो अब आपने इसी को अपडेट करना है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो आप इसको यूज़ करेंगे सप्लायर फाइनेंशियल। ग्रुपिंग में था आपका डोमेस्टिक वेंडर,
डोमेस्टिक वेंडर, डोमेस्टिक वेंडर जो कि आपका डोमेस्टिक वेंडर। ओके। अच्छा, अब इसको आप एंटर कर दें और इसको क्रिएट करें। जब तक आपका ओके, गुड। अच्छा, एक मिनट, बल्कि ये ऐसा नहीं है, इसको ज़रा दोबारा यही नंबर था। अब इसका इसका जो डेटा है वो आप कलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू सेशन, केबीसी, डोमेस्टिक वेंडर वन, और जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है एज इट इज़ आप इसमें पुटअप कीजिए। और एक और चीज़ ये कि यहाँ पे जो डेटा आपका ऑटोमेटिक आना चाहिए। कंपनी डोमेस्टिक डेटा, डोमेस्टिक वेंडर वेंडर। अच्छा, एक इसको कैंसिल कर दें। और आई थिंक जो वेंडर हमने क्रिएट किया है, इसी को ये इसी को अपडेट करने हैं, ना कि इसको न्यू क्रिएट करें। स्टार्ट, सिलेक्ट, और इसको डबल क्लिक करें। देन आप जो है डिस्प्ले चेंज चेंज में आ जाए। ओके, अब यहाँ पे आप दे दें सप्लायर फाइनेंशियल, मेंटेन, यहाँ पे फाइनेंशियल कर दें। अच्छा, अब देखिए वही सब कुछ वही आ चुका है इसमें। और इसके बाद आप जो है यहाँ पे वेंडर चुने डेटा, और सॉरी, कंपनी कोड डेटा में कंपनी कोड CB01 एंटर कर दें। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में वेंडर को अपडेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, रिकन्सिलेशन अकाउंट। सो वी हैव टू क्रिएट वेंडर रिकन्सिलेशन जेल अकाउंट, और वो जेल अकाउंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, FS डबल। हाउ टू क्रिएट वेंडर रिकन्सिलेशन जेल अकाउंट, चेंज कंपनी CB01। वेंडर आमतौर पे आपके शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में आते हैं, और आप इसको कॉपी कर लें। सब चीज़ इसको कॉपी, 404 यहाँ पे आप दे दें डोमेस्टिक वेंडर वन रिकन्सिलिएशन।
कंट्रोल डेटा में आपने इसको अनटिक कर दें और रिकंसिलेशन टाइप इसको आप वेंडर्स कर दें। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में फीड स्टेटस ग्रुप को YB07 करते हैं, सॉरी YB67 रिकंसिलेशन अकाउंट एंट्रेंस। इसी तरीके से आपने जितने भी आपने वेंडर्स को क्रिएट किए हुए उन सबको आप यहाँ पे चेंज कर देंगे और यहाँ पे आप उसका जो नंबर है हेडिंग आप उसको चेंज करते हैं वेंडर 2 डोमेस्टिक वेंडर 2। चीज को क्लोज कर दें। ड्रॉप लिस्ट डोमेस्टिक वेंडर 1 और बाकी सॉर्ट की जो है सॉर्ट की आप देख लें सॉर्ट की 001 उसके बाद आप देख लें टैक्स विद टैक्स जो भी इसमें है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आप इसको सेव कर दें, आपका जो वेंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपडेट हो जाएगा। डेट एच ओके। एम सॉरी MIR MIRO ये आपकी टी कोड है वेंडर इनवॉइस की उसमें डिपार्टमेंट में। फिर ये आपका आ गया परचेज नंबर कि आपका 410011 ये रेफरेंस आपने इधर मेंशन कर दिया। अब एक और एरर है T169P and it doesn't exist. Please note down this error T169P. So जब भी आप whenever you create vendor invoice in you have to configure this table in backend. इसको आप यहाँ पे ओपन करें। बॉस का जो सिस्टम वो भी आपको प्रॉपर गाइड कर रहा होता है कि आपका अगर ये एरर है तो आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर लें। तो इसमें एक चीज़ देखिए मैसेज नंबर M8100। ओके अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप आ जाएं SM 16 ये 16 टेबल था T169 इसमें कम्युनिकेट CP01 एग्जीक्यूट नोट टू बी एंटर फॉर्म फॉर दिस। ओके इस टेबल में तो ये नहीं है, हम एक बार चेक करते हैं। सिम 30 और यहाँ पे आ गया T169P। इसको आप डिस्प्ले कर लें, इसे एडिट करना था इसको इसे एडिट और यहाँ पे कंपनी कोड सेलेक्ट करें अपना पोजीशन कंपनी कोड CP01। अच्छा यहाँ पे आप इसको टिक कर दें प्योर टेक्स्ट और यहाँ सॉरी न्यू एंट्री में CP01 टिक ऑन दिस और बाकी किसी भी चीज़ को आपने कुछ भी नहीं करना, आप इसको एज इट रहने दें, इसको आप एंटर सेव कर दें। आपका जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा T169P।
NMIR 05 10 enter again. तो आपका जो एरो था T169P, आई थिंक वो सॉल्व हो जाएगा एंड रेडी फॉर नेक्स्ट एरो. तो जो भी आप देखें, आपने एक चीज़ नोट की होती है कि जो भी नया डिपार्टमेंट होगा उसमें जो फर्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट आप उसमें क्रिएट करते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट की क्रिएशन में काफ़ी एरर्स आते हैं. तो वही कंसल्टेंट का काम होता है कि आपने उन एरर को कैसे एडजस्ट करने हैं. आप देख लें कि आपका जो एरर वो सॉल्व हो चुका है. ओके. अब यहाँ पे ये आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पे इतना आ रहा है. यहाँ पे आप अमाउंट मेंशन कर दें, जितनी भी अमाउंट है 10100000 एंटर. तो यहाँ पे आपका जो बैलेंस ज़ीरो आना चाहिए और जो इंडिकेटर वो ग्रीन होना चाहिए, तभी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा. अच्छा, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं एंटर टैक्स कोड. तो टैक्स कोड के बाद ही हम इसमें अपनी जो एंट्री है, जो इनवॉइस है उसको हम क्रिएट कर पाएंगे. ओके. सो वी विल create a configuration of text in coming lecture, and then we will complete our incoming invoice. So in next lecture we will configure text, input text and output text, and then we will able to post a vendor invoice. Okay. So see you in next lecture. Thank you.